بسم اللہ الرحمن الرحیم. آج ہمارے لیکچر ٹیچر ایجوکیشن ایمز اینڈ آبجیکٹیوز ان کمپیریٹیو پرسپیکٹیو کا دوسرا پارٹ ہے. آج کے دن ہم فوکس کریں گے جنرل ایمز آف ٹیچر ایجوکیشن پر. جنرل ایمز آف ٹیچر ایجوکیشن کیا ہیں کہ ٹیچر ایجوکیشن انیبلس ٹیچر ٹو سالو اسٹوڈنٹس پرابلم. اسٹوڈنٹس کی پرابلم اسٹڈیز سے ریلیٹڈ ہوں, اس کی پرسنل لائف سے ریلیٹڈ ہوں. اگر ٹیچر ان پرابلمس کو سالو نہیں کر سکتا تو کم از کم ان پرابلمس کو منیمائز کر دیں, ان پرابلمس کو کم کر دیں, کیونکہ پرسنل لائف سے ریلیٹڈ جو بھی پرابلمس ہیں وہ لرننگ پر بہت افیکٹ کرتی ہیں. اگر آپ کو کبھی پبلک اسکول میں پڑھانے کا اتفاق ہو تو آپ کو یہ بات اچھی طرح سے سمجھ آ جائے گی. پبلک اسکولس میں ابو 90% لوگ 90% سے زیادہ اسٹوڈنٹس جو ہیں وہ بہت غریب ترین فیملی سے بلانگ کرتے ہیں, اور وہ اس طرح کی ان کے پرسنل لائف پرابلمس بہت زیادہ ہوتے ہیں. ان کو فائنینشیل ایشوز ہوتے ہیں, ان کو ایموشنل ایشوز بہت زیادہ ہوتے ہیں, ان کے فیملی میں بروکن فیملی سے بھی تعلق رکھتے ہیں, ان کی فیملیز میں پرابلمس بہت ہوتی ہیں. اور ایک اور چیز بہت ہوتی ہے, وہ ہماری سوسائٹی کا نگلیکٹڈ پارٹ ہوتے ہیں. وہ لوگ جن کو ہماری سوسائٹی جو ہے وہ ایکسیپٹ نہیں کرنا چاہتی. ہماری سوسائٹی ان کو بہت کم طبقے کے لوگوں میں ان کو شمار کرتی ہے. تو کچھ ایسے اسٹوڈنٹس بھی ہوتے ہیں جو اپنی فیملی میں مذاق کا نشانہ بنتے ہیں کہ جو تم تو خود کی اسکول میں پڑھتے ہو, ہم پرائیویٹ اسکول میں پڑھتے ہیں, یہ دس اینڈ دیٹ. تو اس طرح کے پرابلمس میں پڑھ کر بھی وہ اسٹڈیز پہ فوکس نہیں کر سکتے. To create discipline in institute and in students' lives. یہ جو کریٹ ڈسپلن ہے نا ان انسٹیٹیوٹ اینڈ اسٹوڈنٹ لائف, یہ ٹیچر تب بنا سکتا ہے جب وہ خود ڈسپلنڈ ہوگا. جب آپ پریکٹیکل لائف میں جائیں گے اور آپ ٹیچرس بنیں گے تو آپ کو اس بات کا احساس ہوگا کہ ٹیچر کے اسکول میں انٹر ہونے سے لے کر چھٹی ٹائم پر باہر جانے تک اسٹوڈنٹس کی نظریں ٹیچرس کو دیکھ رہی ہوتی ہیں, اسٹوڈنٹ کے کان ٹیچرس کو سن رہے ہوتے ہیں, اور ٹیچرس کا بیہیویئر, ایٹیٹیوڈ, پرسنالٹی, چلنے کا طریقہ سب کا سب اسٹوڈنٹس نوٹ کر رہے ہوتے ہیں. اگر ٹیچر خود ڈسپلن نہیں ہے تو وہ نہ تو انسٹیٹیوٹ میں ڈسپلن قائم رکھ سکتا ہے اور نہ ہی اسٹوڈنٹ کی لائف ڈسپلن ہوگی, کیونکہ اسٹوڈنٹس کا فیوریٹ کام ہوتا ہے اپنے ٹیچرس کو کاپی کرنا. نیکسٹ پوائنٹ ہے ٹو انہینس ٹیچرس نالج ٹو فلفل دا نیڈس آف سوسائٹی. سوسائٹی کے کیا نیڈس ہیں ان کے مطابق ٹیچر کو اس قابل بنایا جائے کہ اس کا نالج انہینس ہو. سوسائٹی کی کیا نیڈس ہیں, ان کو کیسے فلفل کرنا ہے, یہ ٹیچر ایجوکیشن میں ٹیچرس کو سکھایا جاتا ہے. ٹو ڈیولپ فنڈامنٹل اسکلز ان ٹیچرس, ٹو ڈیولپ سینس آف اپریسیشن آف کلچرل آرٹس, ٹو ڈیولپ سیلف کانفیڈینس, سیلف ریلائنس اینڈ ہیبٹ آف ڈسکوری. کلچرل آرٹس کا بہت گہرا تعلق ہے سینس آف اپریسیشن کے ساتھ. اگر آپ اپنی ثقافت کی نہیں کرتے, اپنی ثقافت کو اچھا نہیں سمجھتے, تو آپ سوسائٹی کو ایک اچھا معاشرے کو اچھے اسٹوڈنٹس نہیں دے سکتے. نیکسٹ پوائنٹ ہے ٹو ڈیولپ سائنٹیفک اینڈ ریئلسٹک ایٹیٹیوڈ ٹورڈز لائف. اگر ٹیچر کا ایٹیٹیوڈ لائف کی طرف سائنٹیفک ہے, مطلب وہ سنی سنائی باتوں پر بلیو نہیں کرتا اور اپنی پرابلمس کو سالو کرنے کے لیے, ڈیلی لائف پرابلمس کو سالو کرنے کے لیے سائنٹیفک اپروچ کا استعمال کرتا ہے, تو اس کے ایٹیٹیوڈ کا بہت گہرا اثر اس کے اسٹوڈنٹس پر بھی ہوتا ہے. ٹو گیو پریکٹیکل نالج ٹو فیس ڈے ٹو ڈے پرابلمس. ڈے ٹو ڈے پرابلمس کو فیس کیسے کرنا ہے, پریکٹیکل نالج ٹیچر ایجوکیشن میں سکھایا جاتا ہے. نو ڈاؤٹ جو ہم ٹیچر ایجوکیشن میں فارمل اور انفارمل ایکٹیویٹیز کر رہے ہوتے ہیں, جو ہم کتابوں میں پڑھ رہے ہوتے ہیں, جب پریکٹیکل لائف میں جاتے ہیں تو ہم ٹوٹلی اپوزٹ سچویشن کو فیس کرتے ہیں. تو اس پریکٹیکل لائف کا ایک چھوٹا سا نمونہ ٹیچنگ پریکٹس کی صورت میں ہمیں ٹیچر ایجوکیشن میں دکھایا جاتا ہے. ٹو ڈیولپ پرسنالٹی آف ٹیچرس. ٹیچرس کی پرسنالٹی کو ڈیولپ کرنا سکھایا جاتا ہے. ڈیولپ یوز آف ٹیکنالوجی. آج کل کے زمانے میں تو ٹیکنالوجی کا استعمال بہت ضروری ہے. کمپیوٹر کا استعمال, کمپیوٹر پر سلائڈس کو پریپیئر کرنے, پاور پوائنٹ ورڈ اور ایکسل کا استعمال, بیسک سرچنگ وغیرہ سب کچھ جو ہے وہ ٹیچر ٹریننگ میں پڑھا دی جاتی ہے.
ऑब्जेक्टिव्स ऑफ टीचर एजुकेशन के ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं? पहला ऑब्जेक्टिव है इक्विपिंग टीचर विथ नेसेसरी पेडागोजिकल स्किल्स। अब पेडागोजी क्या होती है? पेडागोजी होती है बच्चे की डेवलपमेंट स्टेजेस के हिसाब से उसको पढ़ाना। तो पेडागोजिकल स्किल्स जो हैं वो सारे के सारे टीचर एजुकेशन में सिखाए जाते हैं। ऑब्जेक्टिव है कि टीचर्स को ये सिखा दिए जाएँ स्किल्स, बच्चे की डेवलपमेंट स्टेजेस के मुताबिक उसको पढ़ाना, क्योंकि जो क्लास 1 का बच्चा है उसको पढ़ाने का तरीका और है, क्लास 5 के बच्चों को पढ़ाने का तरीका और है। आप थोड़ा सा नीचे वाले लेवल पर आएँ, प्री प्राइमरी में कच्ची पक्की या केजी या प्री क्लास, प्री नर्सरी और नर्सरी और केजी, इन तीनों क्लासेस में बच्चों को पढ़ाने का तरीका भी मुख्तलिफ है। तो तरीका प्री प्राइमरी में बच्चों को पढ़ाने का है ना, वो क्लास 1 के बच्चों को पर वो आप तरीका अप्लाई नहीं कर सकते, या जो आप चौथी क्लास के बच्चों को पढ़ाने के लिए टेक्स्ट यूज़ कर रहे हैं वो आप प्री प्राइमरी के बच्चों पर अप्लाई नहीं कर सकते। enabling teacher to acquire understanding the child's psychology, बच्चे की साइकोलॉजी के हिसाब से उसको अंडरस्टैंड करना। developing proper attitude towards teaching and learning process, teaching और learning process में proper attitude develop करना। अगर एक टीचिंग मेथड से स्टूडेंट को समझ नहीं आ रही तो दूसरा टीचिंग मेथड अप्लाई करना। अगर लेक्चर के दौरान फील कर स्टूडेंट मतलब लेक्चर के दौरान अगर टीचर फील करे कि मेरा लेक्चर जो है वो स्टूडेंट्स को समझ नहीं आ रहा, तो लेक्चर के दौरान, लेक्चर के बाद, लेक्चर के कुछ दिन बाद, कुछ टाइम बाद रिसर्च करना। रिसर्च करने के बाद वो फैक्टर्स ढूंढना, वो फैक्ट्स ढूंढना जो उस लर्निंग और टीचिंग प्रोसेस को बेहतर बना सकते हैं। ठीक है। Next, I enable teacher to use instructional facilities efficiently and effectively. टीचिंग एड्स का इस्तेमाल। टीचिंग एड्स के अलावा टीचिंग एड्स में देखें, एक तो हमारा बुक आ जाती है, उसके बाद APS आ जाते हैं, इसके अलावा गवर्नमेंट मुख्तलिफ किट्स देती है, मुख्तलिफ एजुकेशनल किट्स दी जाती हैं, उनका बेहतरीन इस्तेमाल कैसे करना है। एफिशिएंटली है बेहतरीन तरीके से और इफ़ेक्टिवली बहुत मुनासिब तरीके से इस्तेमाल। एफिशिएंटली और इफ़ेक्टिवली होता है कि बगैर ज़ाया किए बेहतरीन इस्तेमाल। enabling teacher to understand the significance of individual differences of child, हर बच्चा एक जैसा नहीं होता, हर बच्चे में मूड स्विंग्स होते हैं, हर बच्चे का एटीट्यूड डिफरेंट होता है, उसकी इमोशंस डिफरेंट होती हैं, तो उसको उसके इंडिविजुअल डिफरेंसेस को ध्यान में रखना। क्लास के सारे बच्चे एक ही IQ लेवल के नहीं होते, उस डिफरेंस को ध्यान में रखना। कुछ बच्चे स्लो लर्नर्स होते हैं, कुछ बच्चे फास्ट लर्नर्स होते हैं और कुछ बच्चे बहुत मूडी और चिड़चिड़े भी होते हैं। इनको इन सब बातों को ध्यान में रख के बच्चों को ट्रीट करना सिखाया जाता है। ये ऑब्जेक्टिव है टीचर एजुकेशन का। नेक्स्ट देखेंगे डेवलपमेंट ऑफ एबिलिटी इन टीचर टू सेटिस्फाई पेरेंट्स अबाउट स्टूडेंट्स अचीवमेंट एंड डायरेक्ट देम इन टर्म्स ऑफ प्रॉपर हैबिट ऑफ टेकिंग केयर ऑफ माइंड एंड बॉडी ऑफ स्टूडेंट्स। ये जो पॉइंट है ना, ये ऑब्जेक्टिव जो है, ये सबसे मैं कहूँगी कि इम्पॉर्टेंट आजकल बन गया है, क्योंकि पब्लिक स्कूल्स हों या प्राइवेट स्कूल्स हों, उसमें पेरेंट टीचर मीटिंग हर महीने के बाद रखी जाती है। कुछ ऐसा ये गवर्नमेंट स्कूल्स में भी रहा था कि पेरेंट टीचर मीटिंग रखें, और प्राइवेट स्कूल्स में तो ये लाजमी होती है हर महीने के एंड पे। तो टीचर्स में इतनी एबिलिटी बनाई जाए टीचर एजुकेशन के ज़रिए कि वो पेरेंट्स को सेटिस्फाई कर सकें। ठीक है। अबाउट स्टूडेंट्स अचीवमेंट, उसकी अचीवमेंट के बारे में, एंड डायरेक्ट दैम, और उनकी डायरेक्शन, उनको डायरेक्ट कर सकें। क्या? नंबर 1 बात, प्रॉपर हैबिट ऑफ टेकिंग केयर ऑफ माइंड एंड बॉडी ऑफ स्टूडेंट्स, ताकि वो अपने बच्चे की हाइजीन का ख्याल रखें, अपने बच्चे की ओरल हाइजीन का और उसकी बॉडी केयर का ख्याल रखें। और जैसे आजकल कोविड-19 है, उसके हिसाब से बच्चों को घर में उसकी क्या केयर करनी है वो बताई जाए। गो कि उसके लिए हमें टाइम बहुत कम मिला, लेकिन फिर भी तो उसकी माइंड और बॉडी की नरिशमेंट के लिए क्या करना है पेरेंट्स ने, वो उनको गाइड किया जाए।
प्रॉपर डाइट के बारे में बताया जाए कि प्रॉपर डाइट अपने बच्चे को दे, उसका पढ़ने का टाइम बनाएं और दिस एंड दैट. नेक्स्ट है प्रॉपर बिहेवियरल एटीट्यूड ऑफ स्टूडेंट इन एंड आउटसाइड ऑफ स्कूल. बच्चे का जो एटीट्यूड क्लास में है और क्लास के बाद है, स्कूल में है या स्कूल के बाहर है, वो कैसे पता चलेगा? जब पेरेंट्स के साथ मीटिंग होगी तो इंडिविजुअल जो टीचर्स के साथ, टीचर्स और पेरेंट्स मिलकर बच्चे की बिहेवियरल एटीट्यूड में बेहतरी ला सकते हैं डिस्कशन के साथ. ठीक है. प्रोग्रेस इन एजुकेशन, एजुकेशन में उसकी प्रोग्रेस. स्टूडेंट्स के बारे में पेरेंट्स को ये कहना सीधे सीधे कि आपका बच्चा बनाना लायक है, पता नहीं है, ये फेल होता है, ये ज़िंदगी में कुछ कर नहीं सकता, वो बिल्कुल गलत चीज़ है. बल्कि बिल्कुल ये इंसल्ट करना और सीधे सीधे बच्चे को कह देना कि वो फेल हो गया है, वो काम नहीं कर सकता, ज़िंदगी में कुछ पढ़ नहीं सकता, ज़िंदगी में कुछ बन नहीं सकता, और आपका बच्चा जी बहुत नालायक है, इसको हटा लें पढ़ाई से और इसको किसी काम धंधे में लगा दें, वटेवर. ये सारी बातें तहजीब वाले माशरे में, ये कहना चाहिए महज़ब माशरे में, ये मेंटल टॉर्चर में समझी जाती हैं. लेकिन हमारे यहाँ पर, हमारी सोसाइटी में फैशन है पेरेंट्स पर रोक डालना कि आपका बच्चा तो नकम्मा तरीन है और वो पढ़ाई में कुछ बन नहीं रहा, कुछ कर नहीं सकता, तो इसलिए आप तो हमारा एहसान अजीम समझें कि हम आपके बच्चे को पढ़ा रहे हैं. एक्चुअली ये बातें मेंटल टॉर्चर में आती हैं. तो आपने कभी आपको इत्तेफाक हो तो आप नोटिस कीजिएगा कि प्राइवेट और पब्लिक स्कूल्स में यही डिफरेंस है. प्राइवेट स्कूल्स वाले बच्चों को बहुत पैम्पर्ड रखते हैं, पेरेंट्स को बहुत तसल्ली में कि आपका बच्चा तो जी आइंस्टाइन है, आपका बच्चा तो बिल गेट्स से कम ही नहीं है. लेकिन पब्लिक स्कूल्स में ये एटीट्यूड चलता है मेंटल टॉर्चर वाला और पर्सनालिटी को डिग्रेड करने वाला कि जी आपका बच्चा जो है वो बहुत क्रूअल वर्ड्स इस्तेमाल किए जाते हैं. हालांकि अभी ये ट्रेंड चेंज हो रहा है और आगे भी इंशाल्लाह चेंज हो जाएगा. तो टीचर एजुकेशन में, प्रोग्रेस इन एजुकेशन, बच्चे की जो एजुकेशन में प्रोग्रेस हुई है, कुछ बेहतरी आ रही है या नहीं आ रही, उसके बारे में अच्छे अल्फाज में पेरेंट्स को कैसे बताना है, उसकी एबिलिटी जो है उसे डेवलप किया जाता है. तो क्या ये देखें, आपको पिक्चर में नज़र आ भी रहा होगा, ये पहले पार्ट से रिलेटेड है. प्रॉपर हैबिट ऑफ टेकिंग केयर ऑफ माइंड एंड बॉडी, ओरल हाइजीन के बारे में बताना है, बैथिंग रिचुअल बताना, हेयर केयर बताना, फूड हाइजीन, होम हाइजीन, कपिंग एंड स्नीजिंग हाइजीन, कपिंग एंड स्नीजिंग करते वक्त अपने मुंह के आगे खूनी रखें, और हैंड हाइजीन, हैंड वॉशिंग हैबिट्स के बारे में बताना, ये सब कुछ. और ये जो है लास्ट में ये उसके गुड मैनर्स इन स्कूल एंड आउट स्कूल, उसका जो बिहेवियरल एटीट्यूड है ये उसके बारे में. गुड मैनर्स क्या है? अपनी जगह को साफ रखना, कचरा डस्टबिन में फेंकना, जो ओल्ड है उनकी मदद करना, और जगह जगह कूड़ा करकट ना फैलाना, और उसको मतलब उसका पॉजिटिव एटीट्यूड टुवर्ड्स लर्निंग जो है उसको इन्हेंस कैसे करना है, ये सब ऑब्जेक्टिव्स में आते हैं, टीचर एजुकेशन के ऑब्जेक्टिव्स में. थैंक यू वेरी मच. आज का लेक्चर इतना ही. अल्लाह हाफिज़.